बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बदलती जिंदगी, हिस्सा अव्वल। अब तक हमने सन 1961 से सन 2000 तक के दौर का मुताला किया। आज़ादी के बाद पेश आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए भारत तरक्की की राह पर गामज़न है। इस सबक में हम सियासी, समाजी, माशी, तिब्बी, ज़रई और देही शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। 20वीं और 21वीं सदी में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हुईं। इंसानी ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी से तब्दील हो रही है। हम जिन बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे वो हकीकत का रूप इख्तियार कर रही हैं। साइंस ने हमारे मिजाजों को भी बदला है। उसने एक नया ज़हन और नया अंदाज़े फ़िक्र अता किया। आज़ादी के बाद भारत में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ। 15 अगस्त सन 1947 भारत आज़ाद हुआ। मुल्क में जमहूरियत का क़याम अमल में आया। 26 जनवरी सन 1950 में हमारा अपना दस्तूर नाफिज हुआ। आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद ने आज़ादी, मुसावात, भाईचारा और समाजी इंसाफ जैसे उमूर को बढ़ावा दिया। भारत के आयन की तदवीन के ज़रिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जदीद भारत में मुसावात पर मबनी समाज की तश्कील की खातिर गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिवायती ख्यालात में बड़ी तब्दीली लाई। ये तब्दीली उन्होंने दस्तूर हिंद की वसातत से की। दस्तूर की तमहीद के ज़रिए भारत के तमाम शहरियों को इंसाफ, आज़ादी और मुसावात जैसी कदरों और उन कदरों के मुताबिक अमल करने और कानून साजी के ज़रिए उन कदरों पर अमल पैरा होने की ज़मानत दी गई है। दस्तूर हिंद की रूह से तमाम भारतीयों की हैसियत कानून के सामने यकसां है और मजहब, नस्ल, ज़ात, जिन्स या मकामे पैदाइश की बुनियाद पर तफरीक करने की मुमानियत है। दस्तूर की तमहीद में शहरियों को दर्जे और मौक़े की मुसावात की ज़मानत दी गई है। इसका मतलब ये होता है
کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، جنس، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا. اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنا کی تمیز نہ ہوگی. دستور کی تمہید نے مواقع کی مساوات کو بھی اہمیت دی ہے. اس کے ذریعے تمام شہریوں کو یکساں طور پر اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہوئے کسی قسم کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے. ہفتم جماعت میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ہمارے دستور نے بھارت کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیے ہیں. یہ حقوق بنیادی حقوق کہلاتے ہیں. ان حقوق کے مطابق بھارت کے تمام شہریوں کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی، پرامن طریقے پر بغیر اسلحہ کے اجتماع اور متحد ہونے، بھارت کی تمام ریاستوں میں آزادی سے گھومنے پھرنے، قیام کرنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. ہمارے دستور میں بھارتی شہریوں کے حقوق درج ہیں. ان میں ہمارے دستور کے ذریعے دیا گیا آزادی کا حق یہ سب سے اہم حق ہے جو شہریوں کے لیے لازمی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. بحیثیت شہری ہمیں تقریر اور اظہار کی آزادی حاصل ہے. یہ آزادی ہمیں انگریزی دور حکومت میں حاصل نہیں تھی. اس دور میں تقریر اور اظہار پر پابندی عائد تھی. بحیثیت شہری ہمیں پرامن طریقے سے جمع ہونے اور اجلاس منعقد کرنے کی آزادی حاصل ہے. ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی حاصل ہے. بھارت کے کسی بھی علاقے میں آمد و رفت کی آزادی حاصل ہے. ساتھ ہی ساتھ آزادی کے حق کے تحت بحیثیت شہری ہمیں بھارت کے کسی بھی علاقے میں کاروبار کرنے کی آزادی حاصل ہے. اپنی پسند کا کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہے. تو آپ نے دیکھا آزادی کے بعد بھارت میں دستور ہند کی روح سے بھارت کے شہریوں کو مساوات کا حق اور آزادی کا حق دیا گیا. ہمارے دستور کے ذریعے دیا گیا آزادی کا یہ حق سب سے اہم حق ہے. اس کے ذریعے بحیثیت شہری ہمیں تقریر اور اظہار کی آزادی حاصل ہے. پرامن طریقے سے جمع ہونے اور اجلاس منعقد کرنے کی آزادی حاصل ہے. بھارت کے کسی بھی علاقے میں آمد و رفت کی آزادی حاصل ہے. ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی حاصل ہے. بھارت کے کسی بھی علاقے میں کاروبار کرنے کی آزادی حاصل ہے. اپنی پسند کا کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہے. بھارت کے کسی بھی حصے میں رہنے والے فرد کو اپنی زبان، رسم الخط اور تہذیب کے تحفظ کا حق حاصل ہے. دستور نے ہمیں آزادی کے حق کے نام پر صرف
घूमने फिरने या बोलने और लिखने का ही हक नहीं दिया, बल्कि हम महफूज रहें इस बात के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया है। कानून का ये तहफ़्फ़ुज़ यकसा तौर पर सबको दिया गया है। दस्तूर हिंद की रूह से तमाम भारतीयों की हैसियत कानून के सामने यकसा है और मजहब, नस्ल, ज़ात, जिन्स या मकाम पैदाइश की बुनियाद पर तफरीक करने की ममानियत है। दस्तूर की इस शक की वजह से ज़ात पात के निज़ाम की हदबंदियों का खात्मा हुआ। दस्तूर की इस शक की वजह से यानी दस्तूर में मौजूद इस प्रोविजन की वजह से, जिसके तहत भारत के तमाम शहरियों को मुसावात का हक और आज़ादी का हक दिया गया। इसकी वजह से ज़ात पात के निज़ाम की हदबंदियों का खात्मा हुआ, मौरूसी पेशे के नज़रिए को ख़त्म करने में मदद मिली, जिंदगी के तमाम शोबों में तब्दीलियों का आगाज हुआ। ज़ात पात के निज़ाम के ताल्लुक से आप पढ़ चुके हैं। ज़ात पात के निज़ाम की वजह से उस दौर में पेशे मौरूसी हुआ करते थे। मौरूसी पेशे यानी वो पेशे जो नस्ल दर नस्ल खानदान में चले आ रहे हैं। मसलन कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा, किसान का बेटा किसान। किसी दूसरे पेशे को इख्तियार करने की इजाजत नहीं थी। वही पेशा इख्तियार करना जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, ये पाबंदी थी, चाहे उसमें दिलचस्पी हो या ना हो, तो पेशे मौरूसी हुआ करते थे। और हमने अभी देखा दस्तूर हिंद की रूह से भारत के शहरियों को भारत के किसी भी इलाके में कारोबार करने की आज़ादी हासिल है। आपके वालिद का पेशा जो भी हो या आपका खानदानी पेशा कोई भी हो, आप अपनी पसंद का कारोबार कर सकते हैं। कपड़ों का कारोबार करना चाहें, फूलों का, चूड़ियों का, फर्नीचर का या कोई और, आपको इसकी आज़ादी हासिल है। दस्तूर हिंद की रूह से भारत के शहरियों को अपनी पसंद का कारोबार और पेशा इख्तियार करने की आज़ादी हासिल है। अब पेशे मौरूसी नहीं हैं। ये पाबंदी नहीं है कि जो पेशा आपके आबा व अजदाद ने इख्तियार किया हुआ था वही आपको करना है, बल्कि आप अपनी पसंद का कारोबार और पेशा इख्तियार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद इन प्रोविजंस की वजह से ज़ात पात के निज़ाम की हदबंदियों का खात्मा हुआ, मौरूसी पेशे के नज़रिए को ख़त्म करने में मदद मिली, जिंदगी के तमाम शोबों में तब्दीलियों का आगाज हुआ। क्या आप जानते हैं अंग्रेजों के जमाने में रेल के डिब्बों में 4 किस्म के दर्जे हुआ करते थे। फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड क्लास। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिए बराए नाम सहूलियात थीं और इन मुसाफिरों की तरफ हिकारत की निगाह से देखने की बिना पर ये तबका भारतीय समाजी निजाम की अलामत बनकर रह गया था। अंग्रेजों के जमाने में रेल के डिब्बों में कितने किस्म के दर्जे हुआ करते थे? 4। फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड, तीसरा दर्जा। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा इंतहाई आरामदेह और मुख्तलिफ सहूलियात थी। यहाँ आप देख सकते हैं कितने आराम से लोग सफर कर रहे हैं और ज्यादातर इसमें अंग्रेजी सफर किया करते थे।
तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिए बराए नाम सहूलियात थीं। इन मुसाफिरों की तरफ हिकारत की निगाह से देखा जाता था और ये तबका भारतीय समाजी निजाम की अलामत बन के रह गया था। 1978 के रेलवे बजट में मधु दंडवते ने तीसरे दर्जे को बंद कर दिया। उसके बाद पूना मुंबई के दरमियान सिंहगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई कोलकाता के दरमियान गीतांजलि एक्सप्रेस नामी ट्रेनें तीसरे दर्जे के बगैर दौड़ना शुरू हुई। इस तरह अंग्रेजों के जमाने से रेल के डिब्बों में जो 4 किस्म के दर्जे हुआ करते थे, 1978 में रेलवे बजट में मधु दंडवते ने तीसरे दर्जे को बंद कर दिया। उसके बाद पुणे मुंबई के दरमियान सिंहगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई कोलकाता के दरमियान गीतांजलि एक्सप्रेस नामी ट्रेनें तीसरे दर्जे के बगैर दौड़ना शुरू हुई। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में रेस्टोरेंट, थिएटर्स वगैरह के बाहर इस किस्म के बोर्ड्स नजर आते थे। आजादी के बाद भारतीय समाज में छोटी बड़ी तब्दीलियां शुरू हुईं। आज तमाम तबकात के अफराद को होटलों में जाने की आजादी हासिल है। आज तमाम तबकात के अफराद को होटलों में, पार्क में जाने की आजादी हासिल है। कोई रोक टोक नहीं है। पहले बरसर इक़्तिदार हुकूमत के खिलाफ इजहारे राय की हद मुकर्रर थी। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाले पर मुकदमा आयद किया जाता था, उसके खिलाफ कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। लेकिन अब भारत का कोई भी शहरी अखबार, तकरीर या किसी और जरिए से हुकूमत के खिलाफ अपनी राय का इजहार कर सकता है। जो बातें हमें कबूल नहीं हैं, उनके खिलाफ हम खुलकर बोल सकते हैं। आज हमें तकरीर और इजहार ख्याल की आजादी हासिल है। आजादी के बाद आने वाली तब्दीलियों में ये एक बड़ी तब्दीली है कि अब भारत के तमाम शहरियों को तकरीर और इजहार ख्याल की आजादी का हक हासिल है। अब हम बात करेंगे खानदानी निजाम की। आजादी से कबल मुत्तहिद खानदानी निजाम भारतीय समाज की एक अहम शनाख्त थी। भारत पूरी दुनिया में मुत्तहिद खानदानी निजाम के लिए मशहूर था, लेकिन आलमकारी यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इनफरादी खानदान का निजाम बढ़ रहा है। मुत्तहिद खानदानी निजाम यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम। आजादी से पहले भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम राइज था। बड़े बड़े मकानात हुआ करते थे जिसमें खानदान के तमाम अफराद मिलजुल कर एक साथ रहते थे। ये मुत्तहिद खानदानी निजाम भारतीय समाज की एक अहम शनाख्त थी। भारत पूरी दुनिया में मुत्तहिद खानदानी निजाम के लिए मशहूर था, लेकिन आलमकारी यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इनफरादी खानदान का निजाम बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के ममालिक एक दूसरे के करीब आ गए हैं। लोग अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कारोबार और दीगर वजूहात की बिना पर सफ़र करने लगे हैं।
काम की तलाश में लोग अपने गांव छोड़कर शहरों का रुख करते हैं। लिहाजा अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, मुत्तहिद खानदानी निज़ाम का तस्वुर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब शहरों में उतने बड़े बड़े मकानात भी नहीं कि ख़ानदान के सारे अफराद एक साथ रह सकें। तो मौजूदा दौर में आलमकारी यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनफरादी ख़ानदान यानी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का निज़ाम बढ़ रहा है। आज़ादी से कबल मुत्तहिद ख़ानदानी निज़ाम हमारे समाज की एक अहम शनाख्त थी, एक आइडेंटिटी थी। यहाँ बहुत सारे मेंबर्स, खानदान के अफराद मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते थे। दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सब मिलजुल कर रहते थे। मगर धीरे धीरे ये निज़ाम ख़त्म होता गया। पहले भारत पूरी दुनिया में अपने मुत्तहिद ख़ानदानी निज़ाम यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए मशहूर था। मगर अब हम देखते हैं कि शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम की जगह न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ने ले ली है, यानी इनफरादी खानदान के निज़ाम ने जॉइंट फैमिली सिस्टम की जगह ले ली है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर बहरहाल ग्लोबलाइजेशन एक अहम वजह है जिसकी वजह से इनफरादी खानदान का निज़ाम बढ़ रहा है। फलाही रियासत यानी वेलफेयर स्टेट। दस्तूर हिंद ही में फलाही रियासत कायम करने के मकासद बयान किए गए हैं। भारत इस किस्म का तज़किरा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। भारत के शहरियों को मुकम्मल रोजगार, तिब्बी सहूलियात, तालीम व तरक्की के मौक़े मुहैया कराना समाजी फलाह के प्रोग्राम के मकासद हैं। भारतीय समाज में माशी, समाजी, तालीमी और तहजीबी एतबार से बड़े पैमाने पर अदम मसावात पाई जाती है। ख़वातीन, बच्चों, माजूरों, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और जमातों नीज़ अक़लियतों को तरक्की के यकसां मौक़े मिलना ज़रूरी है। पिछले असबाक में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय समाज में माशी, समाजी, तालीमी और तहजीबी एतबार से बड़े पैमाने पर अदम मसावात पाई जाती है। ख़वातीन, बच्चों, माजूरों, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और जमातों नीज़ अक़लियतों को तरक्की के यकसां मौक़े मिलना ज़रूरी है। आज़ादी के बाद हुकूमत को ये सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था, जिसके लिए हुकूमत हिंद ने 1964 में समाजी बहबूद महकमा कायम किया। इस वज़रात के ज़ेर इंसराम तग़ज़िया व बच्चों की नशोनुमा, समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद के प्रोग्राम अंजाम दिए जाते हैं। इसी किस्म का इंतज़ाम अब रियासती सतह पर किया गया है। दर्ज फहरिस्त ज़ातें और जमातें। आपको याद होगा सबक नंबर 6, ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात को खुद कफ़ील बनाना। इस सबक में हम दर्ज फहरिस्त ज़ातों, जमातों और खानाबदोश क़बाइली जमातों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का तफसीली जायज़ा ले चुके हैं। आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद ने आज़ादी, मुसावात, भाईचारा और समाजी इंसाफ जैसे उमूर को बढ़ावा दिया। इसी के मुताबिक छूत छात को कानूनन ख़त्म कर दिया गया। दस्तूर के
17ویں اصول کی روح سے چھوت چھات ختم کر دی گئی اور اچھوت طبقے کو درج فہرست ذاتوں میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 17 ایبولیشن آف انٹچبلٹی۔ انٹچبلٹی یعنی چھوت چھات۔ Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. So دستور کے 17ویں اصول کی روح سے چھوت چھات ختم کر دی گئی اور اچھوت طبقے کو درج فہرست ذاتوں میں شامل کیا گیا۔ 1971 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی 22% آبادی درج فہرست ذاتوں اور جماعتوں پر مشتمل تھی۔ یہ درج فہرست ذاتیں اور جماعتیں سماجی و معاشی طور پر پسماندہ تھیں۔ ان درج فہرست ذاتوں کی سماجی و معاشی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تعلیم اور ملازمتوں میں نمائندگی دی گئی تاکہ یہ جماعتیں ترقی کر سکیں۔ 1971 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی 22% آبادی درج فہرست ذاتوں اور جماعتوں پر مشتمل تھی۔ ان سب کے لیے قانون سازی کے ذریعے تعلیمی وظیفے اور نمائندگیاں دے کر ان کے لیے لوک سبھا، راجیہ سبھا اور حکومت کی دیگر ملازمتوں میں کچھ نشستوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم صحت عامہ اور دیگر شعبوں کی ترقی کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔